अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीना शीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो इंडिया जो है वो अपनी मनमानी पे उतर आया हुआ है और इंडिया ने 2680 पीपल जो हैं उनको अपने मुल्क से निकाल दिया, उनको उनके घर बार से निकाल दिया है। और ये सारे लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अपने घर बार छोड़ के उनके बुरे हालात हैं। और इंडिया जो है उसने अपनी नफ़रत का खुलम खुला इजहार जो है वो बांग्लादेश के लिए कर दिया है। मज़ीद डिटेल में देखते हैं इस वीडियो में। সিএ এর আওতায় পড়েন না এমন বাংলাদেশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়লে কোর্টে পাঠাবেন না, বিওপির কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান না হতেই বাংলাদেশকে আরেকটি শরণার্থী পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে ভারত। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে ঢুকতে ভারতীয় সীমান্তে হঠাৎই দেখা দিয়েছে শত শত মানুষের ভিড়। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান, জেলায় জেলায় হোল্ডিং সেন্টার নির্মাণ আর ধরপাকড়ের আতঙ্কে সীমান্তমুখী হচ্ছেন বাংলাদেশিরা। উত্তর 24 পরগনার হাকিমপুর সীমান্তে নারী, শিশু, বৃদ্ধ সহ অসংখ্য মানুষ ট্রলি আর ব্যাগপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছেন দেশে ফেরার অনুমতির জন্য। সীমান্ত জুড়ে তৈরি হয়েছে উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চয়তার পরিবেশ। বিশ্লেষকরা আশঙ্কা করছেন পরিস্থিতি দ্রুত সামাল না দিলে বড় ধরনের মানবিক সংকটে রূপ নিতে পারে এটি। রোহিঙ্গা সংকটের চাপ এখনো সামলাচ্ছে বাংলাদেশ। তার মাঝেই সীমান্তে তৈরি হওয়া এই নতুন বাস্তবতা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা মহলে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন করে তৈরি হয়েছে সীমান্ত সংকটের আশঙ্কা। শুভেন্দু অধিকারী সরকার গঠনের পর পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তৎপরতা বাড়াতেই বাংলাদেশে ফেরার আশায় সীমান্তে ভিড় জমাচ্ছেন শতাধিক বাংলাদেশি। ট্রলি, ব্যাগপত্র, নারী ও শিশুসহ তারা এখন অপেক্ষা করছেন বিএসএফ চেকপোস্টের সামনে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের হাকিমপুর সীমান্তে দেখা যায় দীর্ঘ অপেক্ষার এই চিত্র। কেউ প্লাস্টিক পেতে বসে আছেন, কেউ লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সীমান্ত সংলগ্ন একটি অস্থায়ী ছাউনিতে অবস্থান নেন প্রায় 100 বাংলাদেশি। বাইরে আরো 30 থেকে 40 জনকে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। একই ধরনের পরিস্থিতি ছিল সোমবারও। প্রশাসনিক সূত্র বলছে, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জেলায় জেলায় হোল্ডিং সেন্টার তৈরির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মূলত অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও সন্দেহভাজন বিদেশিদের আটকে রাখতেই নেওয়া হয় এই উদ্যোগ। আর সেই ঘোষণার পর থেকেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে অবৈধভাবে ভারতে বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে। অনেকেই মনে করছেন আটক কিংবা দীর্ঘ আইনি জটিলতায় পড়ার আগেই দেশে ফিরে যাওয়াই নিরাপদ। তাই সীমান্তের পথে ছুটছেন তারা। সোমবার পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলায় হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়েছে অন্তত 12 জন বাংলাদেশিকে। মালদার ইংরেজ বাজারের চন্দন পার্কে তৈরি শিবিরে রাখা হয়েছে 9 জনকে। তাদের মধ্যে রয়েছেন 3 জন নারী ও 6 জন শিশু কিশোর। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদের লালগোলার পদ্মভবনে তৈরি হোল্ডিং সেন্টারে প্রথমে 3 জনকে রাখা হয়েছিল। পরে মঙ্গলবার আরও 11 জন বাংলাদেশিকে আটক করে সেখানে পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায়। এদিকে ভারতীয় প্রশাসনিক সূত্র বলছে, সীমান্ত পারাপারের বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বিএসএফ। তবে কবে নাগাদ তাদের ফেরত পাঠানো হবে সে বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জানা যায়নি। ফলে অনিশ্চয়তা আর উদ্বেগ নিয়েই সীমান্তে দিন পার করছেন নারী, শিশু ও বৃদ্ধ সহ অপেক্ষমান বাংলাদেশিরা। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इंडिया ने बांग्लादेशियों को उनके घर बार से बेदखल कर दिया। वो बांग्लादेशी जो कितने सालों से इंडिया में रह रहे थे और इंडिया को ही अपना घर मानते थे, लेकिन इंडिया ने अपनी नफ़रत का इजहार किया और उन सब को अपने मुल्क से निकाल दिया। बहुत सारे लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। बहुत से लोग जो हैं, बहुत सारे रिफ्यूजीज़ बॉर्डर पर ही बैठे हुए हैं। उनके बहुत बुरे हालात हैं और बॉर्डर पर टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि इंडिया एक तरफ बांग्लादेश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया जो है वो इस तरह की चालें चलता है जो कि बांग्लादेश को हमेशा से नीचा दिखाना चाहता है। और जैसे ही बीजेपी की हुकूमत बनी है, वेस्ट बंगाल में बीजेपी की पार्टी जीती है, तो उन्होंने बांग्लादेशियों को और ज़्यादा जो है धुतकारना शुरू कर दिया, उनको अपने मुल्क से निकालना शुरू कर दिया। तो बीजेपी जब से वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन जीती है, बीजेपी के जो लीडर हैं बांग्लादेश के लोगों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनका कहना है हम बंगालियों को यहाँ से निकाल के दम लेंगे, और ये किया भी जा रहा है। एक तरफ बॉर्डर पे फेंस लगाई जा रही है, दूसरी तरफ बंगालियों को ज़बरदस्ती इंडिया से निकाला जा रहा है, वेस्ट बंगाल से निकाला जा रहा है। यही वजह है कि बॉर्डर के ऊपर
काफ़ी ज़्यादा रश पड़ चुका है और जो बंगाली रिफ्यूजीज़ हैं उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वो अपने सामान के साथ वहाँ पे सड़कों पे ज़लील और रुस्वा हो रहे हैं। और भारत के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर बंगालियों को ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है और उनको इंडिया के अंदर से निकाला जा रहा है। इस वजह से बांग्लादेश की हुकूमत, बांग्लादेश के लोगों के दिल में भारत के लिए नफ़रत जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है और आने वाले वक्त के अंदर भारत को इसका जो सिला है वो बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि एक हमसाया मुल्क को नाराज़ करना भारत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। चाइना, पाकिस्तान को भी भारत ने नाराज़ किया है, इसके साथ अब बांग्लादेश को भी भारत जो है वो नाराज़ करता जा रहा है और पूरी दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया है। इससे पहले रिफ्यूजीज़ आए थे म्यांमार से, वो बांग्लादेश के अंदर हैं और इसके साथ अब एक नया क्राइसिस जो है भारत क्रिएट कर रहा है बांग्लादेश के लोगों को वहाँ से निकाल के। तो पूरी दुनिया को देखना चाहिए भारत किस तरह से अपना जो मकरू ज़ायम है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ज़रूर बताइएगा कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है और आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।